May I audible? Okay, so let's start. First, let me introduce myself. My name is Ramsha, student of Pharmacy 4th year and Assistant Coordinator of Secure Hands Foundation. Let's commence our session with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Subhanallah. Now start national anthem. MashaAllah. All right, let's begin our session. We all here follow the webinar of Drug Act 1976, organized by Pharmacy Consultancy and Secure Hands Foundation with the collaboration with PEG, which is Pharmacy Exam Guide. Before starting our session, let us have a short introduction of Secure Hands Foundation. Secure Hand Foundation is community-based organization. Our mission is to provide consultancy services to the pharmacist community, as well as the professionals belonging to different backgrounds. We are working to build our nation and to provide training on wide ranges of topics regarding personality development, character building, public speaking, skills, etc. to our youth so they can develop the skills to face the challenges. Our another main mission is to promote health awareness in our community and to reduce the morbidity and mortality rate by preventing the misuse or abuse of antibiotics through antibiotics stewardship program, main project of Secure Hand Foundation. Our vision is to give our nation entrepreneurs rather than job seekers and make our nation strong and prosperous. Speaker Sir Imran.
Bismillahirrahmanirrahim. This session, we will start the session in our national language because you should all know what this is the law saying. So, start with the name of Allah. This session is organized by Pharmacy Consultancy with joint virtue of Secure and Foundation and Pharmacy Exam. Right. Go for next slide, brother. Now, forensic pharmacy क्या है basically? Pharmacy basically है application of pharmaceutical knowledge to investigate of crime, particularly establishing the cause of injury or death. Means के जो forensic से related अगर हमारी दवाइयों से related जो मसले हो रहे हैं, मतलब हम उसको एक legalized way से beneficial for human के लिए use करें. ठीक है. Next slide करें. हमारा मुल्क का एक कानून है, हर चीज के लिए कानून है, हर चीज के लिए कानून बनाया जाता है ताकि एक प्रॉपर वे, और वो कानून जो है वो ओवरऑल पूरे मुल्क में एक्सेप्ट होता है. तो जैसे हमारी मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दवाइयाँ हैं या स्टोरेज है या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है या उससे सेल से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है और उस कानून का नाम ड्रग एक्ट 1976 में बनाया 11 मई. बेसिकली ये कानून पाकिस्तान बनने से पहले बना, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन तब हुई जब ये मुल्क जो है वो प्रॉपर्ली एक कंटिन्यूसली एग्जिस्टेंस में आया और एक स्टेट बना, एक कंट्री बना पूरी दुनिया में, इस्लामिक कंट्री. उसके बाद इसका नाम जो है वो पाकिस्तान रखा गया. पाकिस्तान में जैसे ही फिर चीज़ों को देखा गया तो एक मुख्तलिफ से कानून साजी से इसको लेजिस्लेशन बनाए गए ताकि इस कानून को प्रॉपर्ली हम फॉलो करें. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड बेटा. अच्छा, एक्ट क्या होता है बेसिकली? इन जनरल में कोई एक्शन है. ठीक है. यह एक सिक्योरिटी प्लान है passed by Congress or any legislation which is a bill until acted and become law. ठीक है. सेक्शन में क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट नंबर्ड सब डिवीजन इन लीगल कोड्स, स्टेटस एंड टेक्स्ट पोस्ट. ठीक है. क्लासेस क्या होते हैं? बेसिकली एक सेक्शन है, फ्रेजेस है, पैराग्राफ है, सेगमेंट है या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं. ठीक है. सच एज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डीड हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया दैट रिलेट टू द पर्टिकुलर पॉइंट. यह डॉक्यूमेंट है जो यूजुअली broken into the several number of component that specific section can be easily located. सब सेक्शन क्या है? ये उसी सेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा होता है सब लॉ का. जैसे एक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 5 है और उसमें 21AB, इसको हम कैसे डिफाइन करें? इससे सेक्शन कौन सा है, सब सेक्शन कौन सा है और ये सारी चीजें देखें. Section after that come to the subsection and after that start the clauses and then subsection. For example, you can read this above as section 5 subsection 2 clauses 1 and subclauses B. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाना. जस्ट एक इंट्रो था क्या सेक्शन क्या होती है. अच्छा, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो इंट्रोडक्टरी है. अच्छा, इंट्रोडक्टरी का मतलब ये सबसे बिगनिंग है. तो इस ड्रग को हम क्या कहते हैं? ड्रग एक्ट 1976 भी कहते हैं और ये पूरे पाकिस्तान में लागू हो चुका है. एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान का मतलब पूरे पाकिस्तान में ये लागू है और ये एक ही दफा ही पूरे मुल्क में जैसे ही पब्लिश होने के बाद ये पूरे पाकिस्तान में इसको इम्प्लीकेटेड होने हैं. ठीक है. सेकेंड, एप्लीकेशन लॉ और नॉट बट. ठीक है. अच्छा, दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल इन एडिशन नॉट बी. अच्छा, इस एक्ट से किसी और एक्ट को कोई असर ना हो, किसी और एक्ट की कोई प्रॉब्लम्स ना हो कि किसी और एक्ट को भी ये डिफाइन कर रहा हो इसी एक्ट में या किसी और को भी डिस्टर्ब कर रहा हो. तो ये एक्ट उन सबसे लगे, जैसे डेंजरस ड्रग एक्ट है 1930 का है या कोई और जो कानून है जो उस वक्त आया हुआ हो. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड करें बेटा. अच्छा, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिसकी जो मोस्टली एमसीक्यूज में आती हैं, जो आपने पूछनी है कि कौन सी जो है वो एडल्ट्रेटेड ड्रग्स हैं, कौन सी मिसब्रांड ड्रग है. तो ये सारी चीजें ना एक पर्टिकुलर इसमें डिफाइन की गई है, जिसको हम कहीं पे भी ये कह सकते हैं कि ये ड्रग एडल्ट्रेटेड है
और उस पर फला कानून लगेगा और उसके लिए फना पेनल्टीज है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आती एडल्टेटेड ड्रग मींस, अब उस ड्रग का क्या मतलब है कि जो ड्रग फ्लैथी हो, उसमें वर्ड लिखा हुआ है, मतलब गंदी हो, प्यूटेड हो, उसमें गंद कचरा मौजूद हो, डिकम्पोज हो, जिसमें वर्म्स वगैरह मौजूद हो, या कोई रोडेंट या कोई इंसेक्ट वगैरह उसमें मौजूद हो, तो वो ड्रग एडल्ट्रेटेड आएगी। या मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पैक जो है, पैकेजिंग हो अनसेटिस्फैक्ट्री हो, डर्ट लगी हुई हो, ठीक है, या पॉइजनस डिटोरिएशन हो, उसमें मौसर कोई जहर की तरह उसमें चीज मिले हमें। कंटेन जो इंग्रेडिएंट है अदर देन, जो उसमें लिखा गया है उसके अलावा कुछ और मिले, या कुछ और जो है वो इसमें आपको अदर देन मतलब जो सेट कंपाउंड है उसके अलावा आपको चीज मिले। अच्छा, इसमें एक वर्ड है अपीलेटिव बोर्ड। अपीलेटिव बोर्ड हम आगे पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 9 में आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें आता है काउंटरफिट के नाम से। ठीक है, काउंटरफिट मींस वो ड्रग जो बेसिकली, इसमें वर्ड लिखा हुआ है इमिटेशन, या जाली हो, जिसको जाली कहते हैं। ठीक है, या उसकी आउटर पैकिंग जो है वो ओरिजिनल की तरह हो, लेकिन अंदर जो वो है वो किसी और की तरह, या मतलब जो है वो कहें कि नकल चीज, कॉपी बनाई गई हो। ठीक है, वैसी जो ओरिजिनल का प्रोडक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड करें बेटा। Excuse me, अच्छा, sir. जी जी। Sir, kindly remove your marks. अच्छा, मास्क हटाना है। ठीक है, थोड़ा हटा दो, कोई इशू नहीं। आवाज नहीं आती वैसे? No, sir. ठीक है, चलो मैं हटा दूं। Thank you, sir. ठीक हो गया। अच्छा, एक्सपायरी डेट मीन्स क्या होता है कि जो लेबल एक डेट है, उसके अलावा जो उस एक्सपायरी डेट का मतलब है उस हद तक, जब तक मिसाल के तौर पे कि ये दवाई 6 महीने तक इफेक्टिव है, इसके बाद इसकी इफिकेसी या सेफ्टी या क्वालिटी, क्या कहते हैं, पोटेंसी जो है उसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो वो सेल होने के लिए फिट नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी इसमें आती है जेनरिक नेम आता है, मीन्स नॉन प्रोबेबिलिटी साइंटिफिक। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स वो जो बना रहा होता है उससे उस नाम का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो साइंटिफिक नेम होता है। ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल नेम ऑफ ड्रग है, जो हमें जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हो। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एनालाइज्ड है। अच्छा, गवर्नमेंट एनालाइज्ड और ड्रग इंस्पेक्टर में कुछ डिफरेंस है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। गवर्नमेंट एनालाइज्ड जो है फेडरल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है सेक्शन नंबर 16 के मुताबिक। ड्रग इंस्पेक्टर जो होगा वो प्रोविजनल भी हो सकता है और फेडरल भी हो सकता है। फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर भी हो सकता है, फेडरल ने अपॉइंट किया हो किसी प्रोविंस ने, लेकिन जो गवर्नमेंट एनालाइज्ड होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का ही मतलब अपॉइंट किया हुआ कोई पर्सन होगा। ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट का मतलब है जो हम पाकिस्तान में चीजें, दवाइयाँ लेके आ रहे हैं या कोई भी इंग्रेडिएंट है, लैंड, सी और एयर के थ्रू ना, इन चीजों के थ्रू हम पाकिस्तान में चीज लेकर आ रहे हैं, वो इंपोर्ट होगी। अच्छा, इंस्पेक्टर कौन सा होगा? वो इंस्पेक्टर कहते हैं उसे जो फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर हो या प्रोविजनल ड्रग इंस्पेक्टर हो। तो फेडरल का ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो अलग होगा और प्रोविजनल का ड्रग इंस्पेक्टर अलग होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है लेबल। लेबल का मतलब क्या है कि जो उस पर रिटन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपने उस दवाई की करनी है, या उस पर आउटसाइड द कंटेनर जो भी आपने मार्क किया है, तो वो उसमें उसको उस पर नाम लिखा जाता है, उस पर कोई इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, तमाम चीजें जो है वो उसमें मौजूद होती हैं। एक लेबल, एक ऑथेंटिक लेबल क्या है कि मींस डिस्प्ले रिटन प्रिंटेड और ग्राफिकल मैटर अपॉन द कंटेनर आउटसाइड ऑफ द, जो कंटेनर के बाहर मौजूद हो। अब कंटेनर और क्लोजर ये कुछ अलग चीजें, ये इंशाल्लाह हम किसी और सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करें स्लाइड पर। अच्छा, मिस ब्रांडिंग का वर्ड है। मिस ब्रांडिंग क्या होता है? ये उसी से रिलेटेड चीजें हैं कि मिस ब्रांडिंग क्या होगी। ठीक है। अच्छा, जिन मिस ब्रांडिंग और उसमें क्या फर्क है एडल्ट्रेशन में? तकरीबन ये एक जो है मिलते जुलते ये अल्फाज हैं तकरीबन ना। कभी एमसीक्यूज में आ रहा होता है कि मिस ब्रांडिंग ड्रग इनमें से कौन सी है और एडल्ट्रेटेड कौन सी है, तो आप ये चीजें थोड़ी देख लीजिएगा। अच्छा, नॉट लेबल एंड प्रेस्क्राइब मैनर, सबसे पहले ये है। लेबल एनी वर्ड स्टेटमेंट विच इज इंपॉर्टेंट इज नॉट प्रोमिनेंटली अपीयर्ड, मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है वो जाहिर ही नहीं हो रही।
नॉट लेबल्ड हाउ टू यूज, और यही नहीं पता कि वो इधर इमल्शन है, सस्पेंशन है, इमल्शन को कैसे यूज करना है, सस्पेंशन को कैसे यूज करना है। अच्छा, लेबल या तो लेबल हो लेकिन वो मतलब वो यूं समझे कि वो ठीक ना हो या झूठा हो किस्म का ना। अच्छा, या जिसको कलर जो है वो किया गया हो, कलर कोटेड, मतलब उसके ग्रेन्यूल्स बना दिए गए, उनको इस तरह का अपीयरेंस दी गई हो कि वो बिल्कुल जो है वो ओरिजिनल की तरह लगे। ठीक है। अच्छा, लेबल जो है सही से नहीं प्रिंट किया हो। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन के रूल के खिलाफ काम कर रही हो। ठीक है, तो ये सारा आ गया इसमें मिस ब्रांडिंग ड्रग में। उसमें क्या था एडल्ट्रेटेड में, कि ड्रग में कुछ और मौजूद हो, मतलब एक्स्ट्रा चीज जो उस ड्रग की इफिकेसी वो बढ़ाए कम करे, सारी चीजें ना इस तरह। इसमें क्या होगा, ब्रांडिंग में इशू होगा कि लेबलिंग भी ठीक नहीं होगी, इंस्ट्रक्शन भी ठीक नहीं होगी, और सारी चीजों से ये चीज हमारी मुख्तलिफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें बेटा। अच्छा, स्पीरियस ड्रग क्या हो गया? स्पीरियस ड्रग कौन सी होती है कि जो डू नॉट कंटेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद ही ना हो, ना असली प्रोडक्ट हो, ना ट्रू प्रोडक्ट हो, और इंपोर्ट और सेल उस तरीके से किया गया हो कि वो बेसिकली किसी और कोई और ड्रग का नाम उस पर लगाकर और हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, इट कंटेन the label which have name of manufacturer but actually the company or individual does not exist, means वो कंपनी जो वो जिसने बनाई हो, ठीक है, और जिसने बनाई हो तो उसका उस पर नाम ही ना हो, किसी और कंपनी का नाम लगा के और हम इसको सेल कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल स्टोरेज, या जो है कंडीशन के बारे में इसको नहीं पता, स्टोरेज गलत किया गया हो, अब वो एक्सपायर हो चुकी है, तो फिर उसको दूसरे नाम देकर चलाया जाए, तो वो ड्रग एक्सपायर मतलब नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज है, और उसको हम लेबलिंग वेबलिंग चेंज करके और उसको चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन के, मतलब ड्रग की स्पेसिफिकेशन, ड्रग की क्या चीज है। तो जो ड्रग स्पेसिफाइड हो मीन्स के किसमें किस पाकिस्तान फार्माकोपिया में हो, इंटरनेशनल फार्माकोपिया में हो, मतलब जेनरिक ड्रग जो होगी ना, कहाँ कहाँ मौजूद हो, पाकिस्तान फार्माकोपिया में उसका लिटरेचर मौजूद हो, इंटरनेशनल फार्माकोपिया में और यूरोपियन फार्माकोपिया में, ये जितनी भी फार्माकोपियाज हैं उनमें मौजूद हो, या तो किसी और फॉर्म में उसका मौजूद होना जरूरी है, ताकि हमें ये उसका पता लगे कि ये जो ड्रग है वो क्लिनिकली अप्रूव है। ठीक है, और ये क्लिनिकली अप्रूव है या क्लिनिकली इसके बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू द रिस्क। तो ये मतलब इन चीजों में पहले से उसका लिटरेचर मौजूद हो तो वो उसकी स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर रहा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड करें बेटा इसमें। अच्छा, अब आता Excuse है me, कि sir. जी जी, Sir, we have one question. How can we क्वेश्चन easily इन लास्ट, differentiate? आप हाँ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये लास्ट में सेशन करते हैं, अभी आप सिर्फ सुनते रहें क्योंकि मेहमान को टाइम देना है हमारा, तो फिर लास्ट में हम जो है ना वो Right, sir. क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जो भी है कोई मसला नहीं है, अगर आप नहीं बता सके ना तो हमको ईमेल में उनका आंसर दे देंगे, कोई इशू नहीं, फीडबैक फॉर्म में। अच्छा, अब क्या है कि रेगुलेशन प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट, मतलब अब ड्रग जो है पाकिस्तान में सबसे पहले क्या उसकी इंपोर्ट जरूरी है कि ड्रग बाहर मैन्युफैक्चर हो रही है, हमारे यहाँ कुछ उसके मसलों की वजह से मैन्युफैक्चर नहीं, तो बाहर पाकिस्तान से पाकिस्तान में आएगी तो किस तरीके से आएगी, तो उसका एक कानून बनाएगी फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने का फेडरल गवर्नमेंट के पास एक लेजिस्लेशन ऑफिशियल गजट होगा जो नोटिफाई करेगी उसमें कि ये ड्रग जो है बाहर यूज होती है, मसलन कि कौन सा कंट्रीज है, यूएसए में यूज होती है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्रीज जो प्रिस्क्राइब है ना वहाँ यूज होती है, और हम इसको पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं फला स्पेसिफिक बीमारी के लिए या फला चीज के लिए, फर्मा डायग्नोज के लिए। तो ये इसका मतलब है कि हम नई हम जो है नई चीज नहीं लेके आ रहे हैं, जो हम नई नहीं बना रही, जो क्लिनिकल अप्रूव ना हो, ये किसी और जगह यूज हो रही हो, वहाँ क्लिनिकल अप्रूव हो, तो हम इसको टेस्ट करने के लिए या क्लिनिकल अप्रूवल लेने के लिए हम इसको पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन बनाएगी। ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको ऑफिशियल गजेट में, गजेटेड फॉर्म होता है जहाँ जितने भी जो है वो बुक होती है, जितने भी जो कानून है, जितने भी ये सारी चीजें उसमें ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, ये कुछ
रेगुलेशन, ये कुछ हमारे लॉज हैं जिसको जस्ट सिर्फ हम पढ़ने के हद तक ठीक है, कोई इसमें लिखा तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम इसको ये चाह रहे हैं कि शॉर्ट इन द है कि इनमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम जो है वो आपको बताएंगे। जैसे रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर है कि फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि ये दवाई इस मुल्क में कैसे बनी, ठीक है। अच्छा, फिर फेडरल गवर्नमेंट उसकी सेल को देखे, फिर उस ड्रग को रजिस्टर्ड करे और पाकिस्तान नेशनल फार्मूले में लेकर आए। अच्छा, फिर एक अपीलेटी बोर्ड बनाए कि अगर कोई बंदा ये फिट समझ रहा है कि दवाई बाहर यूज हो रही है और उसको नहीं मिल रही इजाजत यूज करने की, तो एक अपीलेटी उसके लिए बोर्ड बनाया गया और उस अपीलेटी बोर्ड में हर महीने एक मीटिंग हो, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करे विद इन 60 डेज में कि ये जो ड्रग इंपोर्ट कर रहे हैं या ये दवाई बना रहे हैं ये जो है बिल्कुल फिट है, और हर महीने उसको रिव्यू किया जाए। वो मीटिंग होगी कि कौन सी दवाइयां हैं, जैसे पाकिस्तान में ड्रग इंपोर्ट हो रही है या बन रही है तो वो सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट के दारों से अप्रूव होने के बाद ही पाकिस्तान में यूज होगी। अच्छा, उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे जो उसको सारा देख रही हो, ठीक है। फिर हमारा प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होगा कि अब मैन्युफैक्चरिंग अलो हो गई पाकिस्तान में, तो उसको हर प्रोविंस का है वो उसकी क्वालिटी सारी चीज़ें टेस्ट करे, फिर उसके लिए फिक्स करे एक प्राइस। अच्छा, फिर डायरेक्ट टू करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और फिर उसकी टेस्टिंग कराए फेडरल ड्रग लैब से। हर प्रोविंस में एक फेडरल ड्रग टेस्टिंग लैब होगी जो उसे टेस्ट करेगी। फिर उसके बाद प्रोविंशियल टेस्टिंग लैब होगी जो अंडर द फेडरल टेस्टिंग लैब के अंदर काम करेगी। अच्छा, उसके बाद एक गवर्नमेंट एनालिस्ट रखेंगे, ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी ताकि वो उस दवाई की सारी जो मतलब पीछे हम देख कर आए रेगुलेशन, सेल, नेशनल फार्मूले, क्लिनिकल चीजें, सब चीजें देख कर आए, ताकि देखे और उसको एनालाइज करे कि इधर ये फिट है, ह्यूमन के लिए ठीक यूज हो रही है, और जिस अप्रूव्ड एप्लीकेशन के लिए हम इसको लेकर आए हैं उसको ये लोग एनालाइज करें कि ये मतलब फिट फॉर ह्यूमन यूज है, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अच्छा, यहाँ रिदा आप इंट्रोडक्शन करा दें और लाइक साहब का जो है वो माइक भी ऑन कर दें, और फिर ये पावर ऑफ इंस्पेक्टर पे हमें जो है वो सेशन देंगे। Thank you so much, sir, for your precious time. Now we have our honorable speaker, Dr. Laik Khan, and he is the drug inspector of Punjab. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। How are you, sir? जी अल्हम्दुलिल्लाह। MashaAllah. Okay, sir, you may proceed now. जी होपफुली आप सब मुझे सुन सकते हैं। अगर आपको क्लियर आ रही है मेरी वॉइस तो आप मैसेज नीचे कर दीजिएगा, और जो जो आपको क्वेश्चन कोई अगर आपको ना समझ आए तो आप वो भी नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें थी वो अभी मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा लेक्चर दिया इमरान ने। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी उसमें से ऐड करना चाहूँगा। जैसे एक हमारा बिल होता है जब हम किसी असेंबली में पास करते हैं कि हमने एक एक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ड्रग एक्ट है। इससे पहले ये बिल पास होता है, जैसे एक मोशन पास होता है हमारी असेंबली के अंदर, और जब वो मोशन पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो वो एक्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक्ट बन गया ड्रग एक्ट 1976, ठीक है। अब इस एक्ट, ये जो एक्ट है ना, इसके अंडर फिर बनते हैं रूल्स। रूल्स जो होते हैं वो इस एक्ट को गाइड करते हैं। जैसे हमारे रूल्स बने ड्रग एक्ट के अंदर, ड्रग रूल 2007 के रूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें और भी मैं कुछ चीजें देख रहा था, जैसे मिस ब्रांडिंग की, और ये इन्होंने गवर्नमेंट एनालिस्ट और इंस्पेक्टर का बताया, वो भी काफी अच्छा गाइड किया। मैं पावर्स पे आने से पहले ये थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जो हमारी गवर्नमेंट एनालिस्ट है, ये जितनी हमारी लैब्स वगैरह होती हैं इसके अंदर वर्क करते हैं, ये फार्मासिस्ट होते हैं। और ये जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं ये प्रोविंशियल लेवल पे भी हो सकते हैं और फेडरल लेवल पे भी हो सकते हैं। प्रोविंशियल लेवल में फॉर एग्जांपल हमारी लैब्स आ रही हैं, डीटीएल हो गई पंजाब में, जैसे डीटीएल मुल्तान हो गई, डीटीएल हमारी हो गई लाहौर की हो गई, फैसलाबाद हो गई। इधर जो फार्मासिस्ट काम कर रही हैं सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली, ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली वो जो होते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट बनते हैं, ठीक है। और ये फेडरल लेवल पे भी हो सकते हैं, जो फेडरल हमारी लैब्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद मिस ब्रांडिंग की थोड़ी सी बात थी, वो मैं बता दूं पावर्स पे मूव करने से पहले, कि मिस ब्रांडिंग का मतलब ये है कि
कोई भी अगर मेडिसिन है, उसके ऊपर कोई, उसकी लेबल क्लेम के ऊपर कोई भी चीज मिसिंग है, तो फिर वो मिसब्रांडेड है। फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई वार्निंग नहीं लिखी हुई, या कोई यूजेस नहीं लिखे हुए, उसकी इंडिकेशन नहीं लिखी हुई, या उसके मिलीग्राम्स नहीं लिखे हुए, या इवन हम लोग ये भी चेक करते हैं जब हम फील्ड में उतरते हैं कि एक मेडिसिन है तो एक तरफ इंग्लिश में और एक तरफ उर्दू में उसका नाम होना चाहिए। अगर ये चीज भी मिसिंग होती है तो ये भी मिसब्रांडेड के अंदर आता है। तो ये मिसब्रांडेड की थोड़ी सी एग्जाम्पल है। इवन आपको अगर मैं एक सिंपल मिसाल इसकी मिस ब्रांडिंग की बता दूं, फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने आप को क्लेम करूं कि मैं एक हकीम हूं, या कोई एक इस तरह की कोई चीज है मेरे पास, ठीक है, हम उसको इस नजर से देखेंगे तो ये मेरे पास बॉटल है, इसके अंदर मैं कोई चीज बनाता हूँ, ठीक है, इसको रख देता हूँ, इस पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ। अगर इस पे लेबल नहीं लगा तो ये मेरे लिए मिस ब्रांडेड है, एक ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज जिससे आपको देख के प्रॉपरली ना पता चले कि उसका कंप्लीशन किस तरह से है ड्रग की, तो ये मिस ब्रांडिंग का है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। Excuse me, अच्छा, sir. अब चलते हैं जी। Sir, meeting is going to be end. Kindly join new meeting. या श्योर श्योर। Okay, sir. अब मीटिंग का Thank टाइम you. थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, अगर कर सकते हैं। अगर पहले एंड होगी तो वो एंड कर देंगे, तो All right, sir. वो देते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सिंपल, इसको, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको दिमाग से निकाल दें कि कोई मुश्किल है। अब मैं आता हूँ पावर ऑफ इंस्पेक्टर के ऊपर। इंस्पेक्टर जो होता है वो सेक्शन नंबर 17 ऑफ ड्रग एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग इस ये होता है इंस्पेक्टर जो होता है। और ये इंस्पेक्टर जो होता है ये प्रोविंशियल भी हो सकता है, ये फेडरल भी हो सकता है। प्रोविंशियल इंस्पेक्टर जो होता है उसको पावर्स दी जाती हैं गजट के अंदर, फेडरल को भी दी जाती है गजट के अंदर। जो पावर्स हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 18 के अंदर, पावर्स हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 18 के अंदर। और ये पावर जो होती हैं, इसमें कुछ पावर्स होती हैं जो कि जैसी, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे या किसी के ऑर्डर हुए एज एन इंस्पेक्टर, तो ये पावर्स हमें फौरी मिल जाएंगी। और कुछ पावर्स होती हैं कि जो गजट यानी नोटिफाई होती हैं, गजट के अंदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो फिर हमें मिलती हैं। अच्छा, ये जो पावर्स होती हैं इसके, ये होती है A to E, यानी ABCDE। ये हमें वैसे ही हमारे पास पावर्स होती हैं जब हमें अपॉइंट होती हैं एज एन इंस्पेक्टर। और फिर F to J जो है, F to J की पावर्स ये हमें गजट में नोटिफाई होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैनुअल से आपको देख के बताता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा विद एग्जांपल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहली पावर हमारे पास है कि इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसिस wherein any drug is manufactured, the plant in the process of manufacture, ठीक है। एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो किसी भी ऐसी जगह को इंस्पेक्ट कर सकता है जहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है। अगर वो बन रही है कानून के अलावा या उसको फॉलो ना करते हुए, फॉर एग्जांपल उनके पास एक प्रोडक्ट बनाने का फॉर्म 7 नहीं है। फॉर्म 7 क्या है कि जो ड्राफ्ट से आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन, उस प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन का है कि समझ एक सर्टिफिकेट है जिसके बाद आप वो बना सकते हैं, आपके पास ये अथॉरिटी है, ठीक है। लेकिन वो नहीं है तो आप नहीं बना सकते, तो उसके ऊपर ड्रग इंस्पेक्टर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएगा और वहां पे एक्शन करेगा, ठीक है। उसको सील कर सकता है, प्रोडक्ट को सीज कर सकता है। उसके बाद inspect any premises wherein any drug is sold or stocked, exhibited for sale, is distributed, storage arrangements and all relevant record वगैरह वो ले सकता है। यानी फॉर एग्जांपल, एक ड्रग इंस्पेक्टर एक फार्मेसी में जा सकता है, एक मेडिकल स्टोर में जा सकता है, वहां पे जाके उनका रिकॉर्ड चेक कर सकता है, वहां पे सेल हो रही है, वहां पे स्टॉकिंग हो रही है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, कि डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है, तो वहां पे भी जाके उसको सील कर सकता है, सीज कर सकता है, अगर उसको कोई कॉन्ट्रवेंशन मिलती है ड्रग एक्ट 1976 की, ठीक है। मैं डेट्स को बार बार रिपीट करूंगा ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। कुछ चीजें एग्जांपल्स ये आपने याद रखनी है। ये दो पावर्स हो गई उसकी। उसके बाद तीसरी क्या है कि वो सैंपल ले सकता है। यानी फॉर एग्जांपल, आप ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, यहाँ से चौथा बंदा ड्रग इंस्पेक्टर है, 10वां बंदा ड्रग इंस्पेक्टर है जूम मीटिंग के अंदर। अब इसके दिमाग में होगा कि मैंने कल जाना है एक फार्मेसी पे, एक मेडिकल स्टोर के ऊपर, वहां पे मुझे शक है कि वो बड़ी लोकल दवाइयां रखता है, कुछ रखता है। तो मैं इसको चेक करने के लिए कि क्या ये दवाई असली है, क्या इसकी एफिकेसी ठीक है, क्या ये मिसब्रांडेड तो नहीं है, एडल्ट्रेटेड तो नहीं है, स्पूरियस तो नहीं है, स्पूरियस मतलब जाली, ठीक है, ये भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो वो क्या करेगा, उसकी सैम्पलिंग करेगा, यानी तो सैंपल्स को लेगा और उसको भेज देगा ड्रग टेस्टिंग लैब में टेस्ट होने के लिए, एनालिसिस के लिए। ड्रग
टेस्टिंग लैब को लिए जाते हैं। मतलब आप ड्रग इंस्पेक्टर जब जाओगे मेडिकल स्टोर पे, आप एक मेडिसिन उठाओगे, उसके 4 पोर्शंस करोगे। एक दे दोगे डीटीएल को कि टेस्ट करो गवर्नमेंट एनालिस्ट, एक भेज दोगे पीक्यूसीबी को कि आप ये रख लें, इन केस ये फेल होता है सैंपल और वो कहता है कि जी मैं मानता नहीं हूं, तो हम इसको फर्दर लैब में भेज सकते हैं, तो पीक्यूसीबी के पास वो चला जाता है। उसके बाद एक चला जाता है वारंटर के पास, जिस बंदे ने वो मेडिसिन की वारंटी दी होती है स्टोर वाले को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे या फार्मेसी को, तो उस वारंटर को भी भेज देते हैं कि ये पोर्शन हमने आपको भी भेज दिया। और एक पोर्शन दे देते हैं उस बंदे को जो जिस बंदे से लिया होता है। जी, पीक्यूसीबी होता है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। प्रोविंस का एक क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होता है, उसका एक सेक्रेटरी होता है जो चेयरमैन होता है, ठीक है। ये जो होता है, जो क्वालिटी केसेस होते हैं उनको डील करता है। क्वालिटी केसेस का मतलब ये होता है कि सैम्पलिंग की, सैंपल फेल हो गया, फेल चाहे किसी भी बेस पे हुआ, स्पूरियस यानी नकली, मिस ब्रांडेड मतलब उसकी स्पेसिफिकेशंस पूरी नहीं लिखी हुई, या एडल्ट्रेटेड है, उसके अंदर कोई डर्ट या डस्ट वगैरह इस तरह से है। ये होते हैं क्वालिटी केसेस कि इनकी क्वालिटी नहीं सही। ये क्वालिटी केसेस डील करता है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। यानी ड्रग टेस्टिंग लैब भेजा, वहां से हुआ जी, पीक्यूसीबी प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, तो ये केस उनको चला जाता है और वो देखते हैं, ठीक है। आप सबको आवाज आ रही है? काइंडली जरा मुझे एक बार फिर बता दीजिएगा आवाज आ रही है अगर मैं सही, अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के केसेस होते हैं, ठीक है। और इसमें फॉर्म 4 के ऊपर हम सारा डाटा लिखते हैं, फिर हम अपने पोर्टल के ऊपर इस सारे के सारे जो फॉर्म 4 होता है ना, इसके ऊपर जो डाटा हमने लिया होता है इसकी एक कॉपी दे देते हैं इस बंदे को कि ये आप एक कॉपी रख लें अपने पास, ठीक है। यानी कि एक सबूत होता है कि हमने यही चीजें उठाई हैं, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं उठाया, ठीक है। और ये इवन कोर्ट में भी अगर जाते हैं तो वो हम अपने एक सबूत होता है हमारे पास कि हमने यही चीजें उठाई हैं। उसके बाद क्या होता है, जो फॉर्म 4 के बाद ना हम अपने पोर्टल के ऊपर एक फॉर्म जनरेट करते हैं, उसको कहते हैं फॉर्म नंबर 6। फॉर्म 6 होता है मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट एनालिस्ट, यानी कि जो डाटा यानी जो ड्रग्स होती हैं हमने उठाई अपने फॉर्म 4 के ऊपर, फॉर्म 4 फॉर सैम्पलिंग, ठीक है, उसको हम लिखते हैं या पोर्टल के थ्रू हम नोट करते हैं, एंटर करते हैं, फॉर्म 6 जनरेट करते हैं। फॉर्म 6 इस तरह से कुछ आपको नजर आएगा, ठीक है। ये फॉर्म 6 है, या देखें ये फॉर्म 6 है। इस फॉर्म 6 के ऊपर इसको कहते हैं मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर ड्रग का नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरर का नेम आएगा, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, इसका बैच नंबर आएगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट आएगी एक एक ड्रग की। और हर ड्रग, फॉर एग्जाम्पल 4 ड्रग उठाएंगे तो 4 फॉर्म 6 जनरेट करेंगे हम, ठीक है। और ये हम फॉर्म 6 जो होगा ये साथ भेजेंगे जब पीक्यूसीबी में जमा कराएंगे। और फॉर्म 6 होते हैं मेमोरेंडम टू ड्रग एनालिस्ट, ठीक है। ये ड्रग इंस्पेक्टर भेजता है। मतलब जैसे मैं आपको एक लेटर लिख रहा हूँ कि यार ये चीजें हैं, ठीक है, इसी तरह मैं एक मेमो भेज रहा हूँ गवर्नमेंट एनालिस्ट को कि यार ये ड्रग्स हैं और इसकी ये एक्सपायरी, बैच, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा कुछ है, तो उसके ऊपर ही होगा। अब आपको ये पता चल चुका होगा कि ड्रग एक्ट 1976 के अंदर फॉर्म 4 होता है सैम्पलिंग के लिए, ठीक है, यानी इंटीमेशन होती है पर्पस कि आपसे ये चीजें ले ली गई हैं, सैम्पलिंग फॉर्म होता है वो। और फॉर्म जो 6 होता है वो होता है मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है, जो हम उसको भेजते हैं। और फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होता है इसको टेस्ट करता है, ठीक है। और एक अगर पास हो जाता है, फेल हो जाता है, तो एक और फॉर्म के ऊपर रिजल्ट जारी करता है, ठीक है। वो जो फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म 7, ठीक है। और जो ड्रग्स हम चेक करते हैं जाके, हम उनको पूछ लेते हैं कि फॉर्म 7 है, यानी कि ये इसका आपके पास ये डिटेल से पास है या नहीं है, ठीक है। हम उसके भेजते हैं और हम वेट करते हैं कि डिटेल उसकी टेस्टिंग करेगी और उसका फॉर्म 7 जारी करेगी। फॉर्म 7 आ गया, वो पास हो गया तो ठीक है, मिस ब्रांड हो गया, एडल्ट्रेटेड हो गया, स्पूरी से हो गया, तो हम केस बनाते हैं उसके ऊपर और केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये मैं आपको फर्दर जब क्वेश्चन आंसर सेक्शन होगा तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी बेसिक आपको बता रहा हूँ। फॉर्म 7 के चले मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। फॉर्म 7 देखें, फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्म 4 के ऊपर डाटा लिखा, फॉर्म 6 को जनरेट किया, जो मैंने भेजा गवर्नमेंट एनालिस्ट को डीटीएल में। अब डीटीएल में बंदा जो बैठा हुआ अपना काम करेगा, टेस्ट करेगा, सैम्पलिंग करेगा, एनालिसिस करेगा, चेक करेगा ये पास होता है ये फेल होता है, अगर पास है अगर फेल है। अब मैंने लेटर लिखा था उसको, तो वो मुझे लेटर लिखेगा, यानी कि गवर्नमेंट एनालिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर को भेजेगा, वो होता है फॉर्म 7, ठीक है। यानी कि वो होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ ये लगता कैसा है देखने में। मैंने
कुछ इस तरह से होता है। ये देखें, ये फॉर्म 7 है, ठीक है, ये फॉर्म 7 है। इस पे आप देख लें कि लिखा हुआ है कि ये नेम ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, उसको भेजा हुआ है, ठीक है, उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि ये मिसब्रांडेड है, एडल्टरेटेड है, क्या है, उसका रिजल्ट लिखा होता है, उसका बैच, सारी डिटेल लिखी होती है, और नीचे गवर्नमेंट एनालिस्ट के साइन स्टैंप होते हैं, ठीक है। ये होता है फॉर्म 7। बाकी फॉर्म में आपको एक गो में ना समझा दूंगा, अगर आप समझना चाहेंगे एंड पे, वो सारे हैं वो याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये कि एंटर एंड सर्च विद असिस्टेंस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, वो किसी भी बंदे की असिस्टेंस के साथ वो एंटर हो सकता है, ठीक है, और वहां पे जाके चेक कर सकता है ड्रग इंस्पेक्टर कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रवेंशन तो नहीं है। उसके बाद कॉल इन पर्सन टू बी प्रेजेंट एज विटनेस, ठीक है, वो एज अ विटनेस जब हम जाते हैं, हम कुछ सर्च करते हैं एक स्टोर को, हम कोई कॉन्ट्रवेंशन ढूंढते हैं, तो हम अपने साथ एक विटनेस रखते हैं, ठीक है। विटनेस क्या होता है कि जब हम उसको फॉर्म 5 होता है जिसको हम अपना आम जुबान में कहते हैं चालान, ठीक है। फॉर्म 5 जो होता है हमारा, उसके ऊपर हम अपने साथ वाले बंदे को एज अ विटनेस उसके थंब इम्प्रेशन लेते हैं, उसके सिग्नेचर लेते हैं, ताकि जब ये केस हम ड्रग कोर्ट में लेके जाएं, जब ये बंदा प्रोसिक्यूट हो, तब हमारा विटनेस एज अ शहादत के तौर पे हमारे साथ खड़ा होगा, ठीक है, और वो एक विटनेस हमारे साथ होता है, तो हम किसी भी बंदे को एज अ विटनेस लेके जाते हैं। उसके बाद सीज सच ड्रग एंड ऑल मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग देयर ऑफ, ठीक है, उसके रजिस्टर वगैरह, कैश मेमोस वगैरह, बिल्स वगैरह। सीज का मतलब है कि हम उसको उठा लेते हैं, हम सीज कर लेते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? हम कोई मेडिसिन पकड़ लेते हैं, हम उसके रजिस्टर्स पकड़ लेते हैं जो उसने सही नहीं बनाए हुए, कैश मेमोस पकड़ लेते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा घपला नजर आता है, कोई भी ऐसी ड्रग, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिस पे शक हो रहा है, हम उसको सीज कर लेते हैं। हम जो सीज करते हैं वो जिस फॉर्म पे करते हैं वो होता है फॉर्म नंबर 5, ठीक है, जिसको आम जुबान में मैंने आपको बताया कि हमारा चालान फॉर्म होता है। फॉर्म 5 कैसा लगता है ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी एक फॉर्म 5 की बुकलेट होती है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है फॉर्म 5, ठीक है, ये फॉर्म 5 है। इस पे लिखा होता है जी कि ये मैंने लिया है, यहाँ पे हमने लिखना होता है कि हमने इस मेडिकल स्टोर से ये चीज ली है यहाँ पे, और किस बंदे से ली है, उसका क्वालिफाइड पर्सन के नाम और डाटा लिखते हैं, आईडी कार्ड नंबर, कि ये प्रेजेंट था ये एब्सेंट था। क्वालिफाइड की एब्सेंस पे भी चलान होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे कि प्रोपराइटर क्या है, वो प्रेजेंट था ये एब्सेंट था, इसके ऊपर भी हम लिखते हैं। यहाँ पे हम सारी मेडिसिन लिखते हैं, यहाँ पे आगे हम सारी कॉन्ट्रावेंशन लिखते हैं कि ये वाली विदाउट वारंटी थी, ये वाली मतलब इसकी नारकोटिक एंड स्टीरॉइड्स इससे सेल करा था मेडिकल स्टोर, उसको इजाजत नहीं थी स्केड्यूल बी का सेल करना, लेकिन वो कर रहा था। कि हम सारी कॉन्ट्रावेंशन, सारी ड्रग्स के नाम सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्म जो होता है ये हम अपने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के सामने पेश करते हैं, जहाँ पे एक मीटिंग होती है, वहां पे उस बंदे को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है ये आपके फॉर्म के मुताबिक कॉन्ट्रवेंशन थी, आप क्या बताते हो। अगर हमें लगता है वो कसूरवार वाकई है और उसने कुछ ठीक नहीं किया, हम उसको प्रोसिक्यूट कर देते हैं मीटिंग में, जिसमें डिप्टी कमिश्नर होते हैं और बाकी सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं मीटिंग में। फिर जब प्रोसिक्यूट होता है हम उसको ड्रग कोर्ट में लेके जाते हैं, और यही फॉर्म ड्रग कोर्ट में जज के सामने जाता है, और वहां पे केस प्रॉपर्टी, यानी इसके साथ जो मेडिसिन लिखी होती है, हमारे पास केस प्रॉपर्टी होती है, मेडिसिन जो हमने रखी होती है वो मैच होती है। जज साहब देखते हैं और वकील देखते हैं, हमारा सरकारी वकील पेश करता है कि ये कॉन्ट्रवेंशन थी, ये मेडिसिन आपके सामने एज अ केस प्रॉपर्टी है और ये चालान है। और फिर हम अपने केस को डिफेंड करते हैं और हम केस जीतते हैं, और उसको सजा होती है। सजा आपने पढ़ा होगा, पेनल्टीज वगैरह लगती हैं, जो भी प्रोहिबिशन है, तो उसमें सजा होती है कि जी इसको इतने साल की सजा करनी है, या इसको कैद करनी है, या फिर इसको कोई फाइन करना है, जुर्माना करना है, माइनर कंट्रोवेंशन है, माइनर पेनल्टी है, मेजर है तो मेजर पेनल्टी है, इस तरह से। अब ये ए टू ई की पावर थी, एफ की पावर वो थी जहां से ये सीज करना स्टार्ट किया हमने। उसके बाद रिक्वायर एनी पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम एट एनी रीजनेबल टाइम टू एंड प्लेस टू गिव स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, ये मेरे पास इन्वेस्टिगेशन केस है, मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुझे चाहिए होगा कि मैं उन लोगों को भी बुलाऊं, फॉर एग्जाम्पल स्टोर वाले को बुला सकता हूँ, जिसने इसकी वारंटी दी है उसको बुला सकता हूँ, तो मैं कॉल कर सकता हूँ, मैं बुला सकता हूँ, उनके बयानात को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, केस का हिस्सा बना सकता हूँ, ताकि एंड पे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो ये होता है कि असिस्टेंस किसी बंदे की ली जा सकती है उसमें, और अपने सामने बुलाया जा सकता है उसको। उसके बाद लॉक एंड सी एनी फैक्ट्री, लेबोरेटरी, शॉप, बिल्डिंग, ये वो। अब ये बहुत बड़ी पावर है ड्रग इंस्पेक्टर की, ठीक है। ये जो पावर है इसके मुताबिक ये सील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मेजर कॉन्ट्रवेंशन होती हैं जिसकी माफी नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक प्रेमिसेस है दैट इज रनिंग विदाउट लाइसेंस, लाइसेंस के बगैर वो चल रही है,
तो कोई बंदा ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर नहीं कर सकता, तो अद्वियात का बिजनेस कैसे कर सकता है लाइसेंस के बगैर? और वहां पे कई कॉन्ट्रवेंशन और हो रही होती हैं, जैसे इंजेक्शन लग रहे हैं, टीके लग रहे हैं। तो एक ऐसी प्रेमिसेस जहां पे ड्रग्स मौजूद हैं और वे विदाउट लाइसेंस है, सेल परचेज स्टॉकिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, इवन ये भी नहीं पता कि उसकी फॉर्म 7 यानी उसका जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन है, ड्रैप वाला फॉर्म, वो है या नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको सील करते हैं। सील कैसे करते हैं? ये हमें एक सील दी जाती है, ये है सील, जैसे एक ड्रग इंस्पेक्टर की सील होती है, ये सील होती है। और ये हम सील उसको लगा के, पिघला के, उसके ताले पे वो सील लगा के आ जाते हैं, और वो उसको ओपन नहीं कर सकता। और 2 हफ्ते तक के लिए तो ये वैलिड रहती है सील। उसके बाद हम इसकी एक्सटेंशन मांगते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में बैठ के कि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये सील ना करे, अनलेस अदरवाइज कोर्ट ऑर्डर कर दे कि चले इनको डीसील कर लें। ठीक है, तो हम उसको सील करते हैं, ये सबसे बड़ी पावर है। और ये हम सील इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब फार्मेसी पे जाते तो इतना ज्यादा मटेरियल होता है कि हम उसको उठा नहीं सकते। ठीक है, तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या कहता है, उसको उठाने के बजाय उस प्रेमिसेस को बंद करके सील कर देता है, ताकि बाद में जाके उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। ठीक है, विद ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट या बोर्ड। ठीक है, उसके बाद होता है कि फॉरबिड कर सकते हैं फॉर अ रीजनेबल पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 वीक्स। ये जो सील करता है कि उसको 2 हफ्ते के लिए इसको बंद रख सकते हैं, ये भी एक पावर आपकी, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। और कोई भी ऐसी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब किसी के असिस्टेंस ले सकता है, किसी को विटनेस के तौर पे बुला सकता है, कि लेटर लिख सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा कर सकता है, पावर एक्सरसाइज कर सकता है, जो कि इस एक्ट या रूल्स के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम ही ये है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग एक्ट 1976, ड्रग रूल्स 2007 एंड ड्रैप एक्ट 2012। ठीक है, तो ये चीजें। उसके बाद है कि ये इसकी पावर्स वगैरह इसमें हो गई। उसके बाद इसका प्रोसीजर आ जाता है। प्रोसीजर मैंने आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दिया कि क्या करते हैं, कि हम प्रोसीजर में ये करते हैं कि हमने सैम्पलिंग करनी है, तो हमने फॉर्म 4 के ऊपर सैंपल उठा लिए, हमने इसको भेज दिया गवर्नमेंट एनालिस्ट को, उसकी टेस्टिंग हो गई, फिर हमारे पास रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के 4 पोर्शंस में आती है, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट हमें भेजते हैं, वो क्वाड्रुप्लिकेट आती है। एक रिपोर्ट हम अपने पास रखते हैं, ठीक है, केस के लिए। एक रिपोर्ट हम भेज देते हैं वारंटर को। एक रिपोर्ट हम जो थी वो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भेज देते हैं, और एक जो सैंपल फेल हुआ होता है फिर हम वो भेज देते ये क्वाड्रुप्लिकेट, उसमें हमारे पास रिपोर्ट आती है। अच्छा, ये बहुत सिंपल सी है, ये पावर्स बहुत ज्यादा हैं, और ये गजट में नोटिफाइड पावर्स होती हैं। ठीक है, A to E वैसी होती हैं और F to J नोटिफाइड होती हैं। अच्छा, आप अब अगर कहते हैं तो मैं आपको फॉर्म समझा देता हूँ, अगर आप लोग कहते हैं। ठीक है, या क्वेश्चंस अगर पहले एड्रेस करने हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस आपके एड्रेस कर देता हूँ। जैसे आप लोग बेहतर समझो। जी, अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं अब। फॉर्म 6 का नेम क्या है? मेमोरेंडम टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट है फॉर्म 6 का नाम, मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो ड्रग इंस्पेक्टर लिखेगा। डिटेल प्रोविंशियल और फेडरल, ये दोनों लेवल पे हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है। लाइक साहब, आपसे अगर आखिरी 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए दिए जाए, क्योंकि अभी श्योर मैंने इनको पेनल्टीज श्योर, बतानी है कि पेनल्टीज क्या होती हैं, तो फिर आप ठीक स्टे होगा। ट्यून रहिएगा। मैं इनका आपको ना फिर वापस ले लेता हूँ इन द एंड के ओके सेशन में, ओके तो आप ओके डिस्कस कर पेनल्टीज आ जाए। ठीक हो गया? ओके चलें ओके। बेटा, प्रेजेंटेशन लगाएं, प्रेजेंटेशन ओपन करें। Thank you, sir, for your precious time. अच्छा, पावर ऑफ स्पेक्टर के बाद जो है वो स्लाइड्स आप ओपन कर ले। ठीक है, नियरली ये स्लाइड्स और इस पर इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, और नेक्स्ट चलें, इसके बाद और आगे हैं। चैप्टर नंबर जो है पेनल्टीज वाला होगा। बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉप कर दें। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बैक बैक जाए, बैक स्लाइड जो है, बैक स्लाइड। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 है, प्रोविजन है कि इंपोर्ट, मतलब ये इसमें बिल्कुल सिंपल सी दी गई है। अच्छा, गवर्नमेंट एनालाइज जो करता है वो विद इन 60 डेज के अंदर
सैंपल की रिसिप्ट देगा। अच्छा, और 30 डेज में सैंपल वो तक आप रख सकते हैं, और 30 डेज के बाद सैंपल की रिसिप्ट आपने, ये सिर्फ गवर्नमेंट एनालाइज का काम है। तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा ड्रग इंस्पेक्टर से। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 है प्रोविजन, के इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर प्रोविजन के लिए क्या रूल्स हैं, कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या रूल्स हैं, कंट्रोल ऑफ सैम्पलिंग के क्या रूल्स हैं, और कंट्रोल ऑफ लेबलिंग के लिए क्या रूल्स हैं। तो इसमें थोड़ा सा सिंपल लिखा हुआ है, बहुत ही कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं ताकि हम जो है ना पेनल्टीज पढ़ें कि मतलब ओबेज वगैरह लॉज वगैरह क्या होते हैं। अच्छा बेटा, अब चैप्टर नंबर 4 है, ऑफेंसेस हैं, पेनल्टीज हैं और उसके प्रोसीजर हैं। सबसे पहला जो है इसमें सेक्शन नंबर 27 है, वो क्या कहता है, इंपोर्ट विदाउट लाइसेंस, मतलब कोई भी बंदा विदाउट लाइसेंस से दवाई पाकिस्तान में लेके आ रहा है, उसके लिए पनिशमेंट क्या है, मैक्सिमम मतलब कम से कम जो है 5 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की उसको इम्प्रिजमेंट होगी। अच्छा, 3 साल से कम उसको जेल में नहीं रखा जाएगा, कम मतलब 2 साल नहीं, मैक्सिमम 3 साल, मिनिमम जो है मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक, और उस पर 15 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। अच्छा, ये जो 15 लाख है ये उस वक्त के रुपीज हैं 1976 के टाइम के, ये अभी के नहीं है पैसे, ठीक है। उस वक्त जो 15 लाख थे, तो ये उस वक्त के पैसों के मुताबिक 15 लाख थे। तो अभी तो आप देखेंगे उस वक्त हमारे रुपीज की वैल्यू क्या थी, और आप देखें तो ये उस वक्त के 15 लाख की बात कर रहे हैं। अच्छा, एडल्ट्रेटेड ड्रग को इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस के, तो उसको 7 साल की केस है और फाइन है 1 लाख रुपए तक की उस टाइम के रुपए के मुताबिक। अच्छा, और तीसरा सेक्शन है, इसी के सब सेक्शन है कि वो इंस्पेक्टर को ओबे नहीं कर रहा, कि जैसे लाइक खान साहब है, अगर कोई इनको क्या कहते हैं प्रॉपरली इनके कहने के मुताबिक नहीं चल रहा, तो वो उस जो है वो मतलब सेलर को या जो इम्पोर्टर है उसको 1 साल तक की वो कहते हैं ना कि हवालात में रख सकते हैं विद द प्रॉपर चैनल के, और उसको तकरीबन जो है या तो अगर वो दोबारा ये रूल इंपोर्ट कर रहा है विदाउट लाइसेंस के, तो ड्रग इंस्पेक्टर उसको 5 साल तक की सजा दे सकते हैं और तकरीबन 50,000 तक फाइन कर सकता है। तो लायक खान साहब अगर किसी स्टोर पे जाते हैं और कोई उनको ओबे नहीं करता, तो वो उसको 1 साल तक हवालात की जिसे कहते हैं ना हवा खिला सकते हैं, और उनको 10,000 तक का फाइन ऑन द स्पॉट लगाएंगे, और अगर ये रूल इनमें से कोई भी ब्रेक कर रहा है तो उसको 50,000 तक की पेनल्टी है। अच्छा, फिर सेक्शन नंबर 28 है कि अगर कोई ये पूरा लाभ फिर दोबारा रिपीट करके ब्रेक कर रहा है, एक दफा उसको पेनल्टी हो गई, 7 साल की सजा हो गई, सब कुछ हो गया, पैसे दे दिए, तो वो क्या होगा कि उसको फिर लाइफ ऑफ मतलब पूरी जिंदगी उसको या तो जेल में गुजारनी पड़ेगी, या तो कम से कम उसको 5 साल से जो है वो ज्यादा कम जो है सजा नहीं दी जाएगी, और 1 लाख रुपए तो उसको पेनल्टी दी जाए, मतलब दोबारा। अच्छा, फिर अगर सेक्शन नंबर फिर दोबारा कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, और 27 सेक्शन को फिर दोबारा कर रहा है, तो फिर 2 साल की होगी सजा होगी, इम्प्रिजमेंट होगा, और कम से कम 10 साल तक वो चली जा सकती है ज्यादा से ज्यादा, और फिर 2 लाख तक फाइन लग सकते हैं इस पर। ठीक है, ये है जितनी भी चीजें बताई, ये है इम्पोर्टर है विदाउट लाइसेंस के, लाइसेंस नहीं है उसके पास, तो जो है वो उसको ये सजा मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद है फर्नीचर, उसका माल जब्त किया जाएगा, प्राइस है उसका बताया जाएगा, फिर एक कोर्ट बनाई जाएगी उसके लिए सेक्शन नंबर 31, जिसमें एक जज होगा या चेयरमैन होगा उस कमेटी का, और उसमें एक पर्सन जो होगा वो मेडिसिन से रिलेटेड होगा, एमबीबीएस डॉक्टर हो के एफसीपीएस उसकी मेडिसिन में हो, या फार्माकोलॉजी में उसकी पीएचडी वगैरह हो, और दूसरा उसमें फार्मास्यूटिक्स में उसकी पीएचडी वगैरह, मतलब कम से कम जो है वो उसकी डिग्री फार्मास्यूटिक्स में पीएचडी हो। अच्छा, उसके बाद अब क्या बनेगा, उसी सेक्शन में कहते हैं कि उसी कोर्ट में एक सेक्शन नंबर 1 अफिलिएटी बेंच बनाई जाएगी कि अगर किसी को लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, फिर एक अफिलिएटी बेंच अपील करेंगे, और उस बेंच में कम से कम 2 से कम जज ना हो, और वो विद इन 30 डेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा, फिर उसके लिए वो इल्तिजा करेगा, पहल का मतलब है, और सेक्शन बताएगा कि वो विद इन 7 डेज के अंदर अपनी समन जो है वो कॉपी ड्रग इंस्पेक्टर को भेजेगा। ठीक है,
ताकि जो है वो उसको ये लगे कि इसके साथ शायद नाइंसाफी हुई हो, गलत से फैसला दिया हो, तो फिर उसको देखा जाएगा उसको उसकी सारी चीज़ों को। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ रिलेटेड द कस्टम, ये कस्टम रिलेटेड जो है ऑफिसर, ये कि अगर कोई नार्कोटिक्स वगैरह ड्रग से कोई रिलेटेड कहानी है तो ये उसको देखा जाएगा कि नार्कोटिक्स है तो नहीं है। अच्छा, ऑफेंसेस कंपनी है या कोई पहले से वो इस क्रिमिनल एक्टिविटीज में है तो उसको डिफाइन करेंगे ये लोग। अच्छा, पब्लिकेशन ऑफ ऑफेंडर नेम, अब उसको ऑफिशियली ऑफेंडर का जो ये कर रहा है सारा क्राइम कि इन अपीलेटिव बोर्ड और पहले इसके बाद भी उसको लग रहा है कि ये जो है वो बिल्कुल ये अफेंड कर रहा है चीज़ें, तो उसका नाम फिर ऑफिशियली क्या कहते हैं पब्लिश किया जाएगा। पावर टू अजम है उसके पास, इंस्पेक्टर जो हो, जो ड्रग इंस्पेक्टर हो या कोई भी है, वो मस्ट बी पब्लिक सर्वेंट हो। ठीक है, तो इंडिमेंटी हो, मतलब उसको मुआवजा अगर हो तो उसको लाया जाए। और फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, मतलब अब उसके खिलाफ जो है फाइनल ऑर्डर निकाला जाएगा कि भाई इस कंपनी को फॉर परमानेंट लाइफ ऑफ बंद किया जाए। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट किया जाए, उसका रिजल्ट जो है वो कि हमने इसकी ड्रग ली, ड्रग इंस्पेक्टर जो है या ड्रग एनालाइट जो है उसने रिजल्ट लिया उसका, उस मेडिसिन का उसकी तरफ से सैंपल लिए, और फिर वो सारी चीज़ें उसकी पब्लिश करेगा और उसकी लाइसेंस को सस्पेंड कर देकर, लाइसेंस वाला इंडस्ट्री है। अच्छा, या उसकी रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड कर सकते हैं, लाइसेंस के साथ रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो जाएगी। और अच्छा, नेक्स्ट चले, बस बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं हम लोग। और ये चैप्टर नंबर 5 है, ये मिसलेनियस है। इसमें कुछ और पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू मार्क द रूल्स क्या हैं, किस तरह बनाती हैं, पावर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो रूल्स को किस तरह बना सकती है, किस तरह मॉडिफिकेशन ला सकती है अकॉर्डिंग टू द पब्लिक इंटरेस्ट है। ठीक है, और अपील या उसको मतलब री अपील कैसे कर सकते हैं वो, इस सारी चीज़ों से अगर वो ठीक है तो वो कैसे इन चीज़ों को प्रमोट कर सकता है, कैसे इन चीज़ों से बच सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सेशन जो है ड्रग एक्ट जो है वो कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कि इससे मतलब आपके जहन में बैठा होगा, आपके जहन में इसी चीज़ से आसानी होगी। इंशाल्लाह ये स्लाइड्स भी आपको शेयर करेंगे, आप स्लाइड्स भी पढ़ लीजिएगा, और आपको सेशन भी रिकॉर्डेड है, वो भी आप जो है वो सेशन जो आप देख लीजिएगा। और बाकी आप जो है वो मैं इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे। इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो वो हम आपको फॉर्म, गूगल फॉर्म होगा उसमें आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आप जो है ये सेशन जो है वलाय खान साहब को हैंड ओवर कर दें ताकि वो फिर क्वेश्चन आंसर्स और बाकी जो है वो अपने सेशन कंप्लीट करें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, sir.